Good morning, dear students. Dear students, in the previous class, we had started with the mechanism of transcription. In this topic, we have discussed that for transcription, the enzyme required was RNA polymerase. And the process of transcription begins with the activation of the ribonucleotides, in which the monophosphates were converted into triphosphates. The another step that we had discussed was about the separation of the DNA strand, identifying the promoter sequence, and this promoter sequence will be recognized by the RNA polymerase sigma factor. Once the sigma factor recognizes the promoter site, the enzyme goes and binds to the promoter site, and then after the process of transcription is going to start. The base pairing is going to begin, in which again the triphosphates will be broken down to monophosphate and a pyrophosphate will be released. This release of pyrophosphate will be releasing some energy which is used in making the hydrogen bond between the RNA and the DNA strand. In the next step, one after the another, the nucleotides will be added up and the RNA chain formation is going to continue. This chain formation is going to continue till the RNA polymerase coincides with the terminator site, right? Promoter से start हुआ है और एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे जब तक RNA polymerase को एक टर्मिनेटर साइट रो फैक्टर नहीं मिल जाता, तब तक ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे और कॉम्प्लीमेंट्री RNA स्ट्रैंड बनता जाएगा. So that is how the RNA strand will be formed. And once this is formed, once it coincides with the termination factor, now the RNA strand is going to be separated out, or we can say released out, right? So that is the next step, which is the release of RNA. Now what is going to happen after the RNA chain formation continues? It will coincide with the termination factor. So as soon as the RNA polymerase receives, or you can say coincides with termination factor, or you can say rho factor, the formed RNA gets separated because there is requirement of the ATPase activity. एनर्जी चाहिए इस सेपरेशन के लिए भी, राइट? तो इनिशिएशन से आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन साइट से एक न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाता है, इनके बीच में बेस पेयर बनता जाता है टिल इट कोइंसाइड्स विद द टर्मिनेशन फैक्टर. टर्मिनेशन फैक्टर आ जाने पर, टर्मिनेशन साइट आ जाने पर, विद द हेल्प ऑफ एटीपेज एक्टिविटी, वो जो नया फॉर्म हुआ आरएनए है वो क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है, रिलीज हो जाता है फ्रॉम द डीएनए. सो दिस रिलीज्ड आरएनए is different from the functional RNA. जो ये RNA रिलीज हुआ है वो अभी भी फंक्शनल RNA नहीं कहलाया जाता, इसे कहा जाता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. What it is called? Primary transcript. So this newly formed RNA is called, very important, this is not the functional RNA, इसे क्या कहा जाएगा? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. क्या कहा जाएगा? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहा जाएगा, ठीक है? अब ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, दिस हैज टू बी प्रोसेस्ड फॉर फॉर्मिंग फंक्शनल आरएनए. फॉर फॉर्मिंग फंक्शनल आरएनए. देखिए हम क्या कह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसक्रिप्शन इधर से स्टार्ट हुआ है, राइट?
यहां से स्टार्ट हुआ, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे। तो स्टार्ट हुआ है वो है इनिशिएशन साइट, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे क्या है, टर्मिनेशन सीक्वेंस लोकेटेड है। टर्मिनेटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसीलिए क्या होगा कि ये जो फॉर्म्ड आरएनए स्ट्रैंड है, जो इतना सा आरएनए स्ट्रैंड बना है, ये आरएनए स्ट्रैंड जो है वो रिलीज हो जाएगा, एंड दिस रिलीज्ड आरएनए स्ट्रैंड इज स्टिल नॉट फंक्शनल आरएनए। अभी भी ये फंक्शनल आरएनए नहीं है, ये जो बना अभी वो क्या है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में कई मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, तब जाके एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट होता है। तो हमें अभी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को फंक्शनल आरएनए में कैसे कन्वर्ट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब और एक चीज, जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में कई सारे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जिनके रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, एंड दे आर ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट व्हिच इज नोन एज ओपेरॉन। इन प्रोकैरियोट्स few structural genes with related function are transcribed as a single unit, जिसे कहा जाता है operon, and transcription of the operon, it results into this type of RNA is known as polycistronic RNA. It is known as polycistronic RNA. इसका मतलब क्या होता है कि एक ही स्ट्रक्चरल जीन से एक आरएनए नहीं बनता। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ऐसे बहुत से स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो नजदीक लोकेटेड हैं, और उन सबका एक यूनिट, वो जब सारे मिलते हैं तब जाके कोई प्रोटीन या एंजाइम प्रोड्यूस होता है। सो व्हेन मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स, व्हेन देयर आर फ्यू, कोई कैरेक्टर के लिए थोड़े स्ट्रक्चरल जीन्स भी हो सकते हैं, कोई कैरेक्टर के लिए ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स भी होते हैं। यूकैरियोट में देखिए क्या होता है कि वन स्ट्रक्चरल जीन फॉर वन प्रोटीन, वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस जो है, या वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस है, वो यूकैरियोट्स के लिए करेक्ट है। पर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि देयर कैन बी मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स फॉर जस्ट वन प्रोटीन और वन पॉलीपेप्टाइड। तो जब बहुत से स्ट्रक्चरल जीन्स को साथ में ट्रांसक्राइब किया जाता है तो वो पूरे यूनिट, एक पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगा जिसमें कई सारे स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, और सारे ही जब ट्रांसक्राइब होंगे तब जाके आरएनए बनेगा, इसलिए उसे कहा जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉली मीन्स मेनी, सिस्ट्रॉन मीन्स कोडिंग फॉर प्रोटीन, कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। सो व्हेन मेनी सच स्ट्रक्चरल जीन्स विल बी कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, तो उसे क्या कहा जाता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए, राइट। एंड in eukaryotes have formation of monocistronic RNA, means one structural gene for one polypeptide. One structural gene will be corresponding to one polypeptide. That happens in the case of eukaryotes. So this is, though it is somewhat difficult to understand, but yes, it is very important to understand what is polycistronic and what is monocistronic RNA. Now once this strand has been formed, once this RNA has been released, ultimately in the last step there will be again formation of the DNA duplex. What will again form? DNA duplex form हो जाएगा, मतलब the two strands of DNA again gets base paired, right?
क्योंकि ऑलरेडी उसमें कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स तो थे ही, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए ये ओपन हुआ था, राइट। अब ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, आरएनए सेपरेट हो चुका है, तो डीएनए के दो जो स्ट्रैंड्स थे जो सेपरेट हुए थे, उनके पास तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स है ही, सो अगेन दे आर गोइंग टू जॉइन एंड अगेन फॉर्म अ डीएनए duplex, right? So the two strands of the DNA will again get base paired and there will be with the release of, अब क्या रिलीज हो जाएगा, तो एंजाइम्स जो थे अनवाइंडेज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, गायरेज, ये सारे ही एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और दो जो डीएनए के स्ट्रैंड्स जो सेपरेट हुए थे वो वापस से ज्वाइन हो जाएंगे। मतलब क्या बन गया, वापस डीएनए डुप्लेक्स फॉर्मेशन हैज अकर्ड, राइट। तो ये था हमारा मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म के एंड पे हमें क्या देखने को मिला कि हमारे पास एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन चुकी है, पर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके वो बनता है फंक्शनल आरएनए। सो व्हाट आर दोस चेंजेस दैट आर गोइंग टू हैपन, that we will discuss as a topic post transcriptional modifications. We are going to discuss about post transcription modifications. Now what are these post transcription modifications? So once the RNA that has formed is different from the functional RNA, right? So the mature RNA is different from the newly formed RNA. Newly formed primary ट्रांसक्रिप्ट, मतलब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से ये अलग है, एंड सो इट इज ऑल्सो नोन एज, क्योंकि नया जो आरएनए बना है, मतलब अभी जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बना है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मेच्योर आरएनए। मेच्योर आरएनए मतलब जो फुल्ली फंक्शनल है, विच एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोटीन, राइट, जिससे आगे प्रोटीन बनने वाला है, वो क्या है, मैच्योर आरएनए है, या तो हम कह सकते हैं फंक्शनल आरएनए। पर वो फंक्शनल आरएनए ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बनी है उससे थोड़ा बहुत अलग होता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब जाके वो फंक्शनल आरएनए बनेगा। तो ऐसी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को और एक नाम दिया जाता है, दैट इज HNRNA, विच इज हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या कहा जाता है, HNRNA, दैट इज हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। मतलब HNRNA बना है और उसे मॉडिफाई करना है इनटू द फंक्शनल आरएनए, ठीक है। तो ये कैसे मॉडिफाई हो सकता है, सो मॉडिफिकेशन ऑफ दिस आरएनए इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, जिसे कहते हैं स्प्लाइसिंग, टेलिंग एंड कैपिंग, राइट। सो देयर आर 3 स्टेप्स दैट आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड, स्प्लाइसिंग, टेलिंग एंड कैपिंग। ये 3 स्टेप्स होने पर, ये 3 स्टेप्स हो जाने के बाद an hnRNA gets converted into a functional RNA, whether it is mRNA, tRNA or rRNA. So now we are going to discuss about the 3 steps. So as we are discussing about the post-transcriptional modification, it is important to know that eukaryotic transcript, मतलब जो नया फंक्शनल नया जो आरएनए बना है, राइट, जिसे हमने प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या तो फिर HNRNA कहा, ये जो नया जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है, इसमें कई इंटरविनिंग नॉन रिक्वायरिंग सीक्वेंसेस भी होती हैं, जिन्हें रिमूव करना पड़ता है, जो फंक्शनल एमआरएनए में नहीं होती, राइट। सो व्हेन द स्ट्रक्चरल जीन, मतलब जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए बनता है, तो बीच बीच में थोड़े न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस ऐसी भी होती है जिसकी फंक्शनल एमआरएनए में कोई जरूरत नहीं होती, तो उतने जो इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस हैं उन्हें रिमूव करना पड़ता है और बाकी के जो रिक्वायरिंग सीक्वेंसेस हैं उन्हें यूनाइट करना पड़ता है,
क्योंकि सिर्फ वही उन्हीं की जरूरत है फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये जो इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस हैं उन्हें रिमूव करने के स्टेप को कहा जाता है स्प्लाइसिंग, राइट। सो वेरी फर्स्ट स्टेप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग में सबसे पहली चीज ये समझनी है दैट द प्राइमरी transcript consists of intervening sequences which are not found in functional mRNA, राइट। अब समझिए हमें फंक्शनल एमआरएनए क्यों चाहिए, क्योंकि ये फंक्शनल एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आता है, राइबोसोम्स के साथ कंबाइन होता है और तब जाके होता है ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, तो ये एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस जो होती है वो किससे डिसाइड होती है, ये एमआरएनए से डिसाइड होती है। पर अगर एमआरएनए में ही बीच बीच में अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता। इसीलिए जरूरी क्या है कि फंक्शनल एमआरएनए में सिर्फ वही सीक्वेंस हो जो कोई ना कोई एमिनो एसिड के लिए कोड करता हो, जो कोई ना कोई एमिनो एसिड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, उसकी सीक्वेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो यहाँ पे इसीलिए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बनता है उसमें ऐसे इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होते हैं जिनको रिमूव करना पड़ता है, तब जाके बनता है फंक्शनल एमआरएनए। तो ये इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है इंट्रॉन्स। सच सीक्वेंसेस, such intervening sequences are called as introns that are to be removed. Introns को क्या करना पड़ेगा, remove. And what has to be done? The exons, जो बाकी की जो functional sequences है, ये exon है, right? तो exons को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड एक्सॉन्स आर टू बी ज्वाइंट, मतलब जब एक्सॉन्स को, मतलब इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा और सारे बाकी के एक्सॉन्स को ज्वाइन किया जाएगा, तब जो लास्ट में बनेगा उसे कहा जाएगा फंक्शनल एमआरएनए। तो हमें फंक्शनल एमआरएनए बनाने के लिए ही ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, ठीक है ना। ये रिमूव कैसे होगा, तो जो इंट्रॉन्स होते हैं उनकी स्टार्ट कोडॉन, मतलब स्टार्टिंग सीक्वेंस और एंड सीक्वेंस फिक्स होती है, राइट। ऑल इंट्रॉन्स बिगिंस विथ GU एंड एंड विथ AG। सारे ही जो इंट्रॉन्स होते हैं उनका पहली सीक्वेंस क्या होती है, GU, और लास्ट न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, AG। उसी से पता चलता है कि यहाँ पे इंट्रॉन है। सो इट बिगिंस विथ GU एंड एंड्स विथ AG। ऐसे जितने भी इंट्रॉन्स होंगे वो सारे GU AG से ही एंड स्टार्ट और एंड होंगे, ठीक है। तो ये GU AG जो सीक्वेंस है उन्हें रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेशल प्रोटीन, एक स्पेशल एंजाइम जिसे कहा जाता है SNRNP, SNRPs। इसे क्या कहा जाता है, SNRPs। So these introns, these sites are recognized by small nuclear ribonucleoprotein, that is SNRNP। इसे यूजुअली बोले तब स्नर्प्स बोला जाता है, ठीक है। तो SNRNP जो है वो एक तरह का ऐसा एंजाइम है जो ये साइट्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है। कौन सी साइट्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है, स्प्लाइस साइट्स को। स्प्लाइस साइट्स मतलब the one which begins with GU and ends with AG. Okay, this also begins with GU and ends at AG. तो इस साइट्स को रिकॉग्नाइज करने का काम किसका है, स्नर्प्स का है। एंड वंस दे रिकॉग्नाइज इट,
they will be forming a small complex called spliceosome. So results into formation of स्प्लाइसियोसोम। और स्प्लाइसियोसोम एक बार बन गया उसके बाद क्या होगा कि ये स्प्लाइसियोसोम जो है वो रिमूव हो जाएगा और लाइगेज जो एंजाइम है वो इन बीच के जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको ज्वाइन कर देगा। सो द एक्सॉन्स आर ज्वाइंड बाय द लाइगेज। स्प्लाइसियोसोम फॉर्म होगा एंड दिस स्प्लाइसियोसोम इज गोइंग टू बी रिमूव्ड एंड इंटरवेनिंग जो बाकी के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो एक्सॉन्स हैं उन्हें ज्वाइन करने का काम किसका होता है? दैट इज द वर्क ऑफ द लाइगेज। अब मैंने यहां से तो समझा दिया, बट व्हाट इज लेफ्ट? कैपिंग एंड टेलिंग। तो कैपिंग क्या होता है इसे हम सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं। कैपिंग मतलब क्या? कैपिंग इज addition of 7 methylated guanine at 5 prime end of RNA। जो RNA बना है उसके 5 प्राइम एंड पे, मतलब ये वाला है, इस पे क्या ऐड होगा? 7 मिथाइलेटेड ग्वानिन। इसे कहा जाएगा कैपिंग। 5 प्राइम एंड पे जो होता है उसे कैपिंग कहा जाता है और 3 प्राइम एंड पे जो होता है उसे टेलिंग कहा जाता है। तो कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग ये तीनों स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। तो पहले कैपिंग हो गया। कैपिंग मतलब क्या कि 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइलेटेड ग्वानिन को ऐड करना। ऑब्वियसली इसमें एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी जीटीपी से मिलती है, दैट इज गुआनिन ट्राइफॉस्फेट से ही मिलती है, बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइलेटेड गुआनिन, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइलेटेड गुआनिन अटैच हो जाता है, मतलब ये एंड सील हो गया, ठीक है। वैसे ही 3 प्राइम एंड पे एडेनाइन रेसिड्यूज की टेल ऐड की जाती है जिसे कहा जाता है पॉली ए टेल, राइट। सो थर्ड स्टेप इज नोन एज tailing, which is addition of 200 to 300 adenine residues at 3 prime end, at 3 prime end। तो 3 prime end जो है वहां पे क्या ऐड किया गया? एडेनाइन रेसिड्यूज, जिसे कहते हैं पॉली ए टेल। तो पॉली ए टेल ऐड करने पर 3 प्राइम एंड भी प्रोटेक्टेड रहता है। अब ये क्यों किया? कैपिंग, टेलिंग की जरूरत क्या है? तो आप समझिए, ये जो आरएनए है ये न्यूक्लियस में फॉर्म हुआ है, ठीक है। पर अब इसे क्या करना है? न्यूक्लियस से बाहर जाना है इनटू द साइटोप्लाज्म। तो जब ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा तो वहां पे बीच में बहुत सारे एंजाइम्स होंगे। ये एंजाइम्स क्या कर सकते हैं? तो ये एंजाइम्स इस आरएनए को क्लीव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए तो ये कोई फॉरेन सब्सटेंस है, जिस मतलब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से हमें पता ही है दैट एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग और क्लीविंग दिस आरएनए स्ट्रैंड। तो ऐसे एंजाइम्स आरएनए को अगर कट ही कर देंगे तो कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये साइटोप्लाज्म में आने से पहले ही क्लीव हो जाएंगे। इसीलिए ये इनके जो एंड्स होते हैं उन्हें सील कर दिया जाता है। सील करने पर कोई भी एंजाइम इस आरएनए को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता एंड देयरफॉर इट रिमेन्स प्रोटेक्टेड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। इसीलिए पहले आप देख सकते हो कि ये जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसमें इंटरवेनिंग सीक्वेंस है इंट्रॉन और रिक्वायर्ड सीक्वेंस है एक्सॉन। 5 प्राइम एंड पे कैप डालना मतलब 7 मिथाइलेटेड गुआनिन को ऐड करना। ये एक बार ऐड हो जाने के बाद टेलिंग होता है जिसमें 3 प्राइम एंड पे एडेनाइन रेसिड्यूज की चेन डाली जाती है। इसीलिए 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड दोनों ही प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब बात आती है स्प्लाइसिंग की। तो स्प्लाइसिंग के लिए स्प्लाइस साइट्स को रिकॉग्नाइज करने का काम है एसएनआरएनपी का। एसएनआरएनपी इज स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये जो साइट्स हैं वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करती है जीयू-एजी सीक्वेंसेस को। जीयू और एजी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके वो वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे कहते हैं स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम को रिमूव किया जाता है और लाइगेज एंजाइम की मदद से एक्सॉन्स जो थे उन्हें वापस
कनेक्ट कर दिया जाता है और ये जो हमारा बना वो है फंक्शनल आरएनए। द लास्ट वन टू बी फॉर्म्ड इज व्हाट? फंक्शनल आरएनए। And this functional RNA is now ready for the synthesis of the protein, that is the third part of the chapter जिसे कहते हैं translation।